السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز، میں ہوں سید رضی۔ میں ہوں شائستہ شہزاد۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلٹن کے آغاز میں آپ کو خبر دیں گے۔ مسلم لیگ نون اور آئی پی پی قیادت کی ملاقات کی اندرونی کہانی اب سامنے آ گئی ہے۔ یہ ملاقات ہوئی ہے پاکستان مسلم لیگ نون اور استحکام پاکستان پارٹی کے رہنماؤں کے درمیان۔ دونوں پارٹیوں کے درمیان سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر اصولی اتفاق ہو گیا ہے۔ لاہور، ساہیوال، لودھراں، رحیم یار خان سمیت دیگر علاقوں میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ ممکن ہے۔ کتنی نشستوں پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی، اس کے لیے پارٹی رہنماؤں کی ملاقات کے مزید دور ہوں گے۔ سیٹوں کا نمبر کیا ہوگا یہ اگلی ملاقاتوں میں پیپر ورک کے ساتھ طے ہوگا۔ شہباز شریف اور جہانگیر ترین ملاقات میں مسلم لیگ پنجاب کے صدر رانا ثناء اللہ ایاز صادق بھی شریک ہوئے۔ تفصیلات جان لیتے ہیں بول نیوز کے نمائندے اخلاق باجوہ سے۔ اخلاق باجوہ، کیا تفصیلات ہیں اس ملاقات کی؟ جی بالکل، پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر رانا ثناء اللہ اور مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف جو ہے وہ اس ملاقات میں موجود تھے۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور اور دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ رائے کے مطابق جہانگیر ترین اور شہباز شریف کے درمیان پنجاب میں ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر جو ہے وہ بات چیت ہوئی، جبکہ شہباز شریف اور جہانگیر ترین کی جو ملاقات ہے وہ شہباز شریف کی رہائش گاہ پر ہوئی، اور اس موقع پر جو ہے وہ مسلم لیگ پنجاب کے صدر رانا ثناء اللہ ایاز صادق بھی شریک تھے۔ آئی پی پی کی طرف سے اون چودھری جہانگیر ترین کے ساتھ ملاقات میں شریک ہوئے۔ ذرائع کے مطابق دونوں جماعتیں سیٹ ایڈجسٹمنٹ جو ہے اس پر کریں گی، اور اصولی طور پر دونوں جانب سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر مکمل طور پر اتفاق رائے پایا گیا۔ ذرائع کے مطابق لاہور، ساہیوال، لودھراں، رحیم یار خان سمیت دیگر علاقوں میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ ممکن ہے، اور سیٹوں کا نمبر کیا ہوگا یہ اگلی ملاقاتوں میں جو پیپر ورک ہے اس کے ساتھ طے ہوگا۔ اور ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ ان قریب ایک بڑی ملاقات بھی ہونے جا رہی ہے، جس میں آئی پی پی اور مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کے درمیان جو ہے وہ ملاقات ہوگی، اور اسی ملاقات میں جو ہے وہ تمام تر معاملات پر جو ہے وہ فیر اصل گفتگو کی جائے گی، اور وہیں سے جو ہے وہ ٹکٹوں کی تقسیم اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے معاملات جو ہے وہ طے پا جائیں گے۔ جی بہت شکریہ اخلاق باجوہ ان تفصیلات کے لیے۔ دہشت گردی کے خطرات پہلے بھی تھے، حکومت کا کام ہے سیکیورٹی اقدامات کرے۔ انتخابی اتحاد کسی سے نہیں ہوگا، صرف سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر بات ہوگی۔ رانا ثناء اللہ نے لاہور میں میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ کسی سے جرم کیا ہے تو اس پر لیول پلینگ فیلڈ کا واویلا مچانا درست نہیں۔ کسی کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے تو عدالتوں سے ریلیف لے۔ ڈیرہ غازی خان کے تمام حلقوں پر مضبوط امیدوار کھڑے کریں گے اور الیکشن جیتیں گے۔ الیکشن الائنس ہم پنجاب میں کسی سے نہیں کر رہے۔ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے ہمارے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں۔ ہر وہ سیٹ جہاں پہ ہم کسی کو جتوا سکتے ہیں یا کوئی ہماری جیت میں معاون ہو سکتا ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ ہم تیار ہیں۔ اب اگر ایک آدمی نے کوئی جرم کیا ہے اور اس جرم کے اوپر اس کو پروسیکیوٹ کیا جا رہا ہے یا اس کے خلاف کوئی مقدمہ درج ہے اور اس مقدمے میں کسی کو گرفتار کیا جا رہا ہے تو اس کے اوپر واویلا مچانا کہ جی ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی، اس کا تو جو ہے وہ کوئی جواز نہیں بنتا۔ عدالتیں موجود ہیں، سپریم کورٹ موجود ہے، ہائی کورٹ موجود ہے، الیکشن کمیشن موجود ہے۔ اگر کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی یا تجاوز ہو رہا ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ جائیں، جا کے عدالتوں سے جو ہے وہ اپنا ریلیف حاصل کریں۔ انتخابی مہم کے دوران سیاستدانوں کے لیے سیکیورٹی تھریٹس عمومی نہیں، مولانا فضل الرحمان سے متعلق خصوصی سیکیورٹی تھریٹ موصول ہو چکا۔ نگراں وزیر داخلہ سرفراز بگٹی نے خبردار کر دیا۔ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس میں سرفراز بگٹی نے کہا سیکیورٹی سے متعلق الیکشن کمیشن کی تمام ضروریات پوری کریں گے۔ غیر قانونی مقیم افراد پاکستان میں سیاسی سرگرمیاں نہیں کر سکتے۔ الیکشن کے دنوں میں وہ زیادہ ایکسپوز ہو جاتی ہیں، وہ پبلک میں جاتی ہیں، پبلک گیدرنگز کرتی ہیں، ریلیز کرتی ہیں، اور ان کا ایکسپوز ہونا جو ہے وہ اٹ سیلف ٹیررزم کے کانٹیکسٹ میں چیلنج ہے۔ ضرور پولیٹیکل لیڈرشپ کو تھریٹس ضرور ہیں، اسپیسیفک تھریٹ کسی لیڈر کے حوالے سے ابھی تک ماں سوائے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ہمیں ریسیو ہوا ہے، لیکن جنرل تھریٹ پبلک ریلیز میں ضرور ہے۔ ہم جو ریکوائرمنٹ الیکشن کمیشن کی ہوگی پیراملٹری فورسز کے حوالے سے وی ول پرووائڈ دیٹ، اور ہم میکسیمم سیکیورٹی پرووائڈ کرنے کی کوشش کریں گے۔ کسی قسم کا کوئی افغان ریفیوجی ہو یا کسی اور ملک کا ویزا ہولڈر ہو، گورنمنٹ آف پاکستان نے پالیسی بنائی ہے کہ وہ کسی قسم کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں پاکستان میں پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے ہیں۔ ان کا پاکستان کی پولیٹکس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ 8 فروری کو شفاف انتخابات پر کسی کو شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ عام انتخابات کی ریس میں
हमारा कोई घोड़ा नहीं। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंगी की कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू, कहा लेवल प्लेइंग फील्ड के नाम पर एक दूसरे को ताने दिए जा रहे हैं। निगरान हुकूमत अपना हिस्सा नहीं डालना चाहती। इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की तमाम ज़रूरियात पूरी करेंगे। आइन के तहत मुल्क का निज़ाम मुंतखब हुकूमत ने चलाना है। साबिक चेयरमैन PTI को गैर कानूनी मकीम अफराद की तर्जुमानी नहीं करनी चाहिए थी। पाकिस्तान के आइनी और सियासी निज़ाम में वाहिद एक इदारा है जिसने यकीनी बनाना है इलेक्शंस, और जब इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान होगा उससे पहले भी उन्होंने बता दिया है कि उनको किस किस अमले की ज़रूरत है, जहाँ जहाँ उनको सिक्योरिटी के जिस इदारे की ज़रूरत पड़ेगी हुकूमत पाकिस्तान वो फराहम करेगी। देखें, जब इंतखाबात का दौर होता है हर जमात जो है अपने हिस्से के लिए सियासत करती है, और पाकिस्तान के सियासी कल्चर में मजलूम होना और शिकायत करने वाले जो हैं वो हमदर्दियाँ हासिल करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो वो तकरीबन तमाम जमातें इस तरह की लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा भी कर रहे हैं, और वो एक दूसरे पर तानाजनी भी कर रहे हैं। तो इस तानाजनी में और इल्ज़ामात की जो बौछार है एक दूसरे पर, इसमें हम अपना हिस्सा नहीं डालना चाहते। इस रेस में हमारा कोई घोड़ा नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक रजिस्टर्ड सियासी जमात है, वो उसको इलेक्शन में जब तक कोई पाबंदी नहीं लगती, और अभी तक कोई इस तरह के कोई इम्कानात मुझे नज़र नहीं आते, तो उनकी कवरेज भी होगी जैसे दूसरी। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने सियासत को खैरबाद कह दिया। PTI छोड़ने का ऐलान कर दिया। सेनेट की नशिस्त से इस्तीफ़ा देने की तस्दीक कर दी। कहा माशी हालात और सेहत की वजह से पिछले 2-2.5 साल बहुत मुश्किल रहे। अहल खाना और दोस्तों की मुशावरत के बाद सियासत को खैरबाद कह दिया। ताहयात ना अहली का कानून खत्म हो चुका। साबिक वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा ताहयात ना अहली के खिलाफ दरख्वास्त को 2 साल हो गए। सिर्फ नवाज शरीफ नहीं, 100 से ज़ायद लोगों को ताहयात नाअहल किया गया। बहुत अच्छा हुआ अगर सुप्रीम कोर्ट ताहयात नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त को मुकर्रर करे। जो लाहौर के हल्का NA 123 से 120 है वो तो कदम नहीं किया, उन्होंने रिमांड बैक किया है कंसेंसस के साथ कि उसमें कुछ टेक्निकल गलतियां हो गई थी बनाते हुए। कुछ चीज़ें मैं समझता हूँ गलतफहमी की वजह से कैंटोनमेंट बोर्ड के कुछ एरियाज डाले गए, मेजॉरिटी डाले गए, और कुछ वार्ड्स रह गए थे, और उसकी वजह से वो उसकी जो यकजा होना है वो उसका करैक्टरिस्टिक खत्म हो गया था। अलबत्ता गुजरांवाला वज़ीराबाद में सेक्शन 20 में कहा गया है कि आबादी जो है 2 हल्कों की वो 10% से ज़्यादा उनमें फ़र्क नहीं होना चाहिए। 190 मिलियन पाउंड करप्शन रेफरेंस में शरीक मुल्ज़िमान के इश्तिहार जारी। इस्लामाबाद की एहतिसाब अदालत ने 190 मिलियन पाउंड करप्शन रेफरेंस में बानी PTI के खिलाफ केस में शरीक मुल्ज़िमान के इश्तिहार जारी कर दिए। इस्लामाबाद की एहतिसाब अदालत की जानिब से रेफरेंस के शरीक मुल्ज़िमान शहजाद अकबर, जुल्फ़ी बुखारी, ज़ियाउल मुस्तफ़ा और फरागोगी के इश्तिहार जारी किए गए हैं, जो जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर चस्पा कर दिए गए हैं। मुल्ज़िमान को 6 जनवरी को इश्तिहार के जरिए एहतिसाब अदालत में तलब किया है। इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुतनाज़े इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर नोटिस जारी कर दिए हैं। इलेक्शन दोबारा कराने की अकबर एस बाबर की इस्तदाबी मुस्तरद कर दी। मेंबर इकरामुल्लाह खान ने कहा कि इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 215 वाज़े है, दोबारा इलेक्शन को भूल जाएं। PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात, अकबर एस बाबर की इलेक्शन दोबारा कराने की इस्तदा मुस्तरद। इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ चौथा दरख्वास्त गुज़ार इलेक्शन कमीशन के सामने पेश हुए। वकील अकबर एस बाबर ने कहा कि वीडियो सबूत है कि कागजात नामजदगी लेने गए, ना ही कागजात नामजदगी मिले, ना ही स्क्रूटनी और ना ही फाइनल लिस्ट लगी। मेंबर अकरमुल्लाह ने कहा कि इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 215 वाज़े है, दोबारा इलेक्शन को भूल जाएं। दरख्वास्त गुज़ार राजा ताहिर नवाज अब्बासी के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। आइन के तहत हर शख्स को इलेक्शन में हिस्सा लेने का मौका मिलना चाहिए। पेशावर में नामालूम जगह पर इलेक्शन कराए गए। जेल में मौजूद और मफरूद लोग पार्टी ओहदेदार मुंतखब हो रहे हैं। पूरा इंतखाबी अमल जाली था, कलअदम करार दिया जाए। इलेक्शन कमीशन ने दीगर दरख्वास्तों पर तहरीक इंसाफ को नोटिस जारी कर दिया। मज़ीद समात 12 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन फ्रॉड थे, ये इलेक्शन नहीं बल्कि सिलेक्शन था। अकबर एस बाबर कहते हैं वर्कर्स को वोट के हक से महरूम रखा गया। जब सियासी जमातें खोखली होंगी तो जमहूरियत का क्या होगा? जमहूरियत के नाम पर नाटक कब तक चलता रहेगा? ये
الیکشن کسی صورت میں نہیں تھے. یہ الیکشن کے نام پہ الیکشن کی ایک تضحیک ہے, الیکشن کا مذاق اڑایا گیا. یہ پہلے سے ایک فیصلہ شدہ تھا کہ سلیکشن ہونے جا رہی ہے, لیکن آج جو طے کرنا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے جو الیکشن ہے یہ صحیح تھے, ٹرانسپیرنٹ تھے, آئین اور قانون کے مطابق تھے. یہ اتنے زیادہ ثبوت ہیں کہ یہ آپ اس بات سے کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا کہ یہ ایک مکمل فراڈ تھے. یہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکروں سے دھوکا ہوا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکر ہیں ان سے یہ ان کا بنیادی آئینی قانونی حق چھینا گیا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنی لیڈرشپ کا انتخاب کر سکے. لیکن جو اس سے بڑی چیز ہے جو طے کرنی ہے کہ آج پاکستان پھر دوراہے پہ کھڑا ہے. ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہم یہ جمہوریت کے نام پہ ناٹک والے راستے پہ چلیں گے جس سے کچھ حاصل ابھی تک نہیں ہوا, یا پھر ہم صحیح معنوں میں ایک جمہوری عمل کا حصہ بنیں گے کہ جس سے پاکستان کے لوگ صحیح معنوں میں اپنی مرضی سے اپنے لیڈرشپ کا انتخاب کریں جس کی بنیاد سیاسی جماعت اور اس کے انٹرا پارٹی الیکشنز ہے. اب کوئی لاڈلا نہیں چلے گا, صرف عوام کی رائے چلے گی. مراد علی کی حیدرآباد میں نثار کھوڑوں کے ہمراہ نیوز کانفرنس. کہا کبھی نیب نون لیگ کے لیے ڈراونا خواب تھا, اب جس تیزی سے مقدمات کے فیصلے ہو رہے ہیں ایسا لگتا ہے نواز شریف اور نیب ایک پیج پر ہیں. الیکشن کے بعد پیپلز پارٹی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہوگی اور بلاول بھٹو وزیر اعظم بنیں گے. یہ 2023-24 میں لاڈلا نہیں چلے گا, اب 23-24 میں عوام کی رائے چلے گی اور انشاءاللہ تعالی عوام کی رائے. ہم کہتے ہیں کہ چاہے سیٹ سانگڑ کی ہو, چاہے خیرپور کی ہو, چاہے ٹھٹا کی ہو, چاہے کراچی کی ہو, عوام کی سیٹ ہے, عوام کے ووٹ ہے اور عوام پاکستان پیپلز پارٹی کو ہی ووٹ کرے گی. وہ نیب جو کہ ایک ڈراونا خواب ہوتی تھی نواز لیگ کے لیے, اس سے زیادہ جس طریقے سے تیزی سے کیسز کے فیصلے ہو رہے ہیں اس ڈراونے خواب کو انہوں نے ایک ویلکم کر رہے ہیں اور نیب اور نواز لیگ ایک ہی پیج پہ ہیں اور ایک ہی بات کر رہے ہیں. 8 فروری کے الیکشن کے بعد پیپلز پارٹی سب سے بڑی جماعت بن کے ابھرے گی اور بلاول بھٹو زرداری صاحب اس ملک کے وزیر اعظم ہوں گے. قوم کو پتہ ہونا چاہیے کون چور ہے. صرف حکومت نہیں لیں گے, 2017 کے جعلی مقدموں کا احتساب بھی چاہتے ہیں. سب سے بڑا ڈاکہ 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل ہے جس پر آنکھوں پر پٹی باندھ کر دستخط کروائے گئے. نواز شریف کا پارلیمانی بورڈ کے اجلاس سے خطاب. کہا ایک کیلنڈر کو لایا گیا جس نے ملک کا یہ حال کیا ہے, جسے معیشت کا پتہ تھا نہ خارجہ پالیسی کا. اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے ریاست مدینہ کا نام لیا جاتا تھا. کچھ تکلیفیں ایسی ہوتی ہیں جن کا ازالہ نہیں ہوتا, زخم نہیں بھرتے. ہمیں جیلوں میں ڈالا گیا, سزائیں دی گئیں. جنہوں نے بوگس مقدمے بنائے کوئی ان سے پوچھے گا. سب سے بڑا سکینڈل جو پیسے کا, کرپشن کا یا ڈاکہ کہہ لیں آپ اس کو, وہ یہ ہے جو 190 ملین پاؤنڈ بند لفافہ لہرا کے کہہ رہے ہیں وہ لوگ کہ جی اس بند لفافے پہ ہی آپ دستخط کر دیں اور بھئی لفافہ کھول کے تو دکھاؤ اس میں ہے کیا. حال ہی میں ایک ایسا کلنڈرا ملک پہ آ گیا یا لایا گیا جس نے پاکستان کا یہ حال, جس کو ملک کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے, اکانومی کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے, فورن ریلیشن کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے, معاشرے کی کوئی خبر ہی نہیں ہے, اخلاقیات کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے, اچھا معاشرہ کس کو کہتے ہیں اس کا پتہ ہی نہیں ہے. صرف زبانی کلامی مدینے کی ریاست مدینہ, لیکن ریاست مدینہ میں کیا ہوتا تھا اس کی کچھ خبر ہی نہیں. کچھ تکلیفیں ہوتی ہیں جیسے میں نے پہلے کہا زندگی میں اس کا ازالہ ہو جاتا ہے, اور کچھ ایسی تکلیفیں ہوتی ہیں جس کا ازالہ نہیں ہوتا, جو زخم کبھی بھرتے نہیں. بانی پی ٹی آئی کی نااہلی کے خلاف درخواست لاہور ہائی کورٹ کے لارجر بینچ کو ارسال. لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شجاعت علی نے سابق چیئرمین پی ٹی آئی کی نااہلی کے خلاف درخواست پر سماعت کی اور سابق چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست سماعت کے لیے لارجر بینچ کو بھجوا دی گئی. احتساب عدالت لاہور نے احد چیمہ کو آمدن سے زائد اثاثہ جات ریفرنس میں بری کر دیا. عدالت نے گزشتہ سماعت پر فیصلہ محفوظ کیا تھا. نیب نے احد چیمہ کے خلاف 2018 میں آمدن سے زائد اثاثوں کا ریفرنس دائر کیا تھا. نگراں وزیر اعظم کے مشیر کا کہنا تھا کئی جائیدادیں رشتہ داروں کی تھیں, بعض کا انتقال ہو چکا ہے. سیاسی عدم استحکام ملک کی تاریخ رہی ہے. آزادی اظہار رائے کو مثبت اور تعمیری ہونا چاہیے. جب تک میرٹ نہیں لائیں گے مسائل حل نہیں ہوں گے. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی کراچی میں آغا خان یونیورسٹی کے طلباء و طالبات سے گفتگو. میں حکومت میں آتا ہوں تو مجھے اظہار رائے جو ہے نا وہ زہر لگتا ہے. اگر آپ کو دے دوں حکومت تو آپ کو زہر لگنا شروع ہو جاتی ہے. دس از پارٹ آف دا پرابلم. ہم اس کو ایز اے پرنسپل نہیں ٹریٹ کرتے ہیں, ہم اس کو ایونٹ بیس
पिक करके चेरी पिकिंग के तहत ट्रीट करते हैं और फिर एक उसके इर्द गिर्द नैरेटिव बना लेते हैं कि देखा जुल्म अजीम आजकल जो हो रहा है। हमारे मुल्क का एक पॉलिटिकल और सोशल और जर्नलिस्टिक कल्चर है, नहीं होना चाहिए इस तरह, इसको डिस्करेज करना चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान इज पार्ट ऑफ पाकिस्तान एंड इंशाल्लाह इट विल रिमेन पार्ट ऑफ पाकिस्तान। यस, इस प्रोसीजर को जो पॉलिटिक्स का है आगे बढ़ना चाहिए। मैं खुद ज़ाती तौर पर सिंपथाइज़ करता हूँ और गिलगित को इन्हांस स्टेटस के साथ, कम पॉपुलेशन है, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, ये हमारा सिंगापुर होना चाहिए, लेकिन आपकी अलहदा कोई शनाख्त नहीं है। आपकी शनाख्त मेरे साथ जुड़ी हुई है, मेरी शनाख्त आपके साथ जुड़ी हुई है। जब तक हम मेरिटोक्रेसी को इनकरेज नहीं करेंगे, इन्फोर्स नहीं करेंगे, समटाइम्स इवन पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन खराबी पैदा करती। और अब कुछ दीगर खबरें। कराची में आयशा मंजिल पर वाक़ अर्शी शॉपिंग मॉल में आतिशज़दगी का वाक़या, KMC के महकमा फायर ब्रिगेड की हादसाती रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट में बताया गया है कि आग लगने की इत्तला 5:41 पर मिली। टीम 5:42 पर रवाना हुई। आग से शॉपिंग मॉल के सामने खड़ी 18 मोटरसाइकिलें, एक गाड़ी जलकर खाकिस्तर हो गई। तीसरी मंजिल पर एक अपार्टमेंट मुकम्मल आग से मुतासिर हुआ। आग से दूसरी मंजिल पर मौजूद 2 अपार्टमेंट्स को मामूली नुकसान पहुंचा। मजीद तफसीलात जान लेते हैं बोली उसके नुमाइंदे वजाहत अली आबदी से। वजाहत, मजीद क्या कुछ सामने आया रिपोर्ट में? हाँ जी, देखिए मैं आपको बता चलूं, फायर ब्रिगेड महकमा बल्दिया उज़्मा कराची की जानिब से फायर लगने की फायर रिपोर्ट जारी कर दी गई। इसमें बताया गया 5:41 के अंदर आग लगी थी, जबकि 5:42 के ऊपर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां फायर स्टेशन से निकल चुकी थी। जब फायर गाड़ियां बिल्डिंग पर पहुंची तो दूसरी मंजिल तक आग पहुंच चुकी थी। ये बताया जा रहा है कि इस अपार्टमेंट के अंदर 76 के करीब अपार्टमेंट थे, 76 अपार्टमेंट थे, जबकि 73 अपार्टमेंट्स को बताया गया 3 अपार्टमेंट जलकर खाकस्तर हो गए। इसके अलावा इनकी फायर ब्रिगेड की रिपोर्ट में ये भी सामने आया कि ग्राउंड फ्लोर के ऊपर 169 दुकानें जलकर खाकस्तर हुई हैं, जबकि ग्राउंड फ्लोर के ऊपर 120 दुकानें और 30 दुकानों को जलने से बचाया गया है। महकमा फायर ब्रिगेड का ये भी कहना है कि इस बिल्डिंग के अंदर किसी भी किस्म का ना तो फायर सेफ्टी अलार्म नस्ब किया गया था, ना ही कोई फायर एग्जिट एरिया मौजूद था, जिसके बाइस यहाँ पे नुकसानात ज्यादा हुए हैं। फायर ब्रिगेड की जानिब से इस बात का भी अभी तक तयन नहीं किया जा सका रिपोर्ट के अंदर कि फायर आग लगने की वजूहात क्या है। बहुत शुक्रिया वजाहत अली आबदी इन तफसीलात के लिए। अर्शी मॉल के मुतासरीन की माली मदद की जाए। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज रहमान ने निगरां हुकूमत से मुतालबा किया। अर्शी मॉल के मुतासरीन से मुलाकात के बाद गुफ्तगू में कहा कि मुतासरीन की कोई मदद नहीं कर रहा। मुतासरीन का हक दिलवाने के लिए धरना देंगे और एहतजाज करेंगे। मुतासरीन के लिए हम हुकूमत का पीछा करेंगे। आज जो तकलीफ और दुख है इस पूरे अमल को देखते हुए, उसको कोई बयान नहीं कर सकता। मेरी बहन वहां पर बता रही थी कि पूरी 30-35 साल की कमाई जल गई है। ये कहना बहुत आसान है, लेकिन जिस पर बीतती है वो जानता है। इसलिए इंशाअल्लाह इन सब लोगों के, दुकानदारों के भी और फ्लैट वालों के भी हक के लिए हम लड़ेंगे और इनको इंशाअल्लाह हक दिलवाएंगे। कराची में आतिशज़दगी के वाक़यात आए रोज़ हो रहे हैं, लेकिन बल्दिया उज़्मा का आग बुझाने वाला इदारा खुद इस वक्त बुझ रहा है। इदारे की क्या सूरत हाल है, जान लेते हैं वजाहत अली आबदी से। हाँ जी, देखिए इस वक्त मौजूद है शहर काइट के अल मुस्तफ़ा अलासिफ स्क्वायर के फायर स्टेशन के ऊपर, जो बल्दिया उज़्मा कराची के ज़ेर इंतज़ाम फायर ब्रिगेड चलाती है। मेरे बिल्कुल अकब में आप देख सकें तो 50 के करीब ब्रिगेड की टेंडर गाड़ियां खड़ी हैं। वज़ीर आज़म की जानिब से 52 के करीब फायर टेंडर्स चाइना से इंपोर्ट किए गए, जो इस शहर में लाए गए, जिसके बाद इन गाड़ियों को ऑफ रोड कर दिया गया और इनको मुख्तलिफ स्टेशन के अंदर खड़ा कर दिया, जिनकी वजह से ये गाड़ियां दिन ब दिन पस्ती की तरफ जा रही हैं। इनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा। शहर काइट 3 करोड़ से ज़ायद आबादी के ऊपर मुश्तमिल हो चुका है, मगर इस शहर के अंदर अभी भी सिर्फ 30 फायर स्टेशन मौजूद हैं, जिनमें से 18 फायर स्टेशन फ़ाल हैं, जबकि 12 के करीब फायर स्टेशन बंद पड़े हैं। अब काम बाला मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब या सिंध हुकूमत के निगरां वज़ीर आला इसके ऊपर कब एक्शन लेते हैं, कब इन फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की किस्मत जागती है, कब फायर ब्रिगेड के हुकाम अपनी हिफाजती इंतजाम। सनतकारों का गैस कीमतों पर एहतजाज। SSGC ने सनतों के गैस काटना शुरू कर दी है। रवा माह करोड़ों डॉलर के एक्सपोर्ट ऑर्डर्स के मुतासिर होने का खदशा है। सनतकार कहते हैं SSGC ने कराची के मुतादिद बड़े एक्सपोर्ट यूनिट्स की गैस जबरी तौर पर बंद कर दी है। रवा माह क्रिसमस के मौके पर दिए गए क्रिसमस ऑर्डर भी वक्त पर नहीं पहुंच सकेंगे। सुई सदर्न गैस कंपनी ने कराची के बड़े
49 एक्सपोर्ट यूनिट्स की गैस गुज़श्ता रोज़ काट दी। मारूफ सनतकार जावेद बलवानी ने कहा कि गैस की बढ़ती कीमतों पर एहतजाज करने पर हमें ब्लैकमेल किया जा रहा है। SSGC डरा धमका कर और ज़बरदस्ती एक्सपोर्ट सेक्टर की गैस काट रही है। गुज़िश्ता हफ्ते महंगाई का गिराफ मजीद ऊपर गया। प्याज, अंडे और दालें भी महंगी हो गईं। महंगाई की मजमूई शरह 42% से तजावुज़ कर गई। इदारे शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक 15 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा, 14 में कमी और 22 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। सब्जी हो या दाल, महंगा हुआ हर माल। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह में 1.16% इजाफा, मजमूई शरह 42% से तजावुज कर गई। इदारा शुमारियात ने दादशुमार जारी कर दिए। प्याज ने शहरियों को 8 आंसू रुला दिए। 13 रुपए फी किलो कीमत बढ़ गई। महंगाई के फंड ने अंडे 8 रुपए फी दर्जन महंगे कर दिए। दाल मूंग 2 रुपए और दाल मसूर फी किलो कीमत में 34 पैसे का इजाफा हुआ। चीनी 1 रुपए 13 पैसे फी किलो महंगी हो गई। टमाटर 12 और आलू 5 रुपए फी किलो तक सस्ते हुए। मुर्गी की फी किलो कीमत में 11 रुपए तक कमी आई। बात करेंगे गजा की सूरत हाल की, जहां पर शहरी आबादी का कत्लेआम जारी है और इसराइली जारियत तीसरे माह में दाखिल हो गई है। दीरुल बला, जिबालिया और नसीरात कैंप पर शदीद इसराइली बमबारी जारी है। शहीद फलस्तीनियों की तादाद 17,000 से जायद हो गई है, जिसमें 70% बच्चे और खवातीन शामिल हैं। 46,000 फलस्तीनी जख्मी हुए हैं। खान यूनुस में फलस्तीनी मुज़ाहमतकारों की इसराइली फौज से शदीद लड़ाई हुई। इसराइली साबिक आर्मी चीफ के बेटे समेत 2 फौजी मारे गए। इसराइली दरिंदगी का 63वां रोज। गजा में अबतर होती सूरत हाल रोज बरोज। दीरुल बला में बमबारी, बहुत से आम शहरी शहीद। शहरियों की वहशियाना बमबारी से बचने के लिए पनागाहों की तरफ जाने की कोशिश। इसराइली फौज ने खुले मकामात पर भी निशाना बनाना शुरू कर दिया। नसीरात कैंप को बमबारी का निशाना बनाया गया। फिजाई और बहरी ताउन के साथ इसराइली टैंक और बुलडोजर्स खान यूनिस दाखिल हो गए, जहां शदीद लड़ाई जारी है। इसराइल के साबिक आर्मी चीफ के बेटे समेत 2 फौजी मारे गए। जमीनी लड़ाई में अब तक 93 इसराइली फौजियों की हलाकत की तस्दीक की गई है। हमास की वसारत सेहत के मुताबिक अल अक्सा अस्पताल में 24 घंटों के अंदर 115 लाशें लाई गईं। अल नजार अस्पताल के मुर्दा खाने के फर्श पर सफेद प्लास्टिक में लिपटी तकरीबन 20 लाशें रखी गई हैं, जिनमें बच्चों की लाशें भी शामिल थीं। शहीद फलस्तीनियों की तादाद 17,000 से तजावुज हो गई, जिनमें तकरीबन 70% खवातीन और बच्चे हैं, जिनकी उम्रें 18 साल से कम थीं। 3 दिनों में 72 इसराइली टैंक तबाह कर दिए। हमास के तर्जुमान उसामा हमदान ने आगाह कर दिया, वाज़ेह किया कि हथियार डालना हमारी डिक्शनरी में ही नहीं, हमारी मज़ाहमत में कोई कमी नहीं आई। गाज़ा में इंसानों का कत्लेआम बंद किया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में जंगबंदी की एक और अपील अमरीका के रहमो करम पर है। OIC की करारदाद पर रायशुमारी आज होगी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस के आर्टिकल 99 के तहत जंग की अपील अरब ममालिक की तायद से करारदाद सलामती काउंसिल में पेश कर दी गई। अरब मीडिया के मुताबिक तवक्को है कि अमरीका रिवायती बेहिसी का मुजाहरा करते हुए फौरी जंगबंदी की करारदाद को वीटो कर देगा। उधर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने इसराइली बर्बरियत के शिकार मजलूम फ़लस्तीनियों के हक में 5 करारदादें मंजूर कर ली। इस्लामोफोबिया से कैसे निपटा जाए, इसके जवाब में हुकूमत की पॉलिसी क्या है? बरतानवी पार्लियामेंट की रुकन नाज शाह का पार्लियामेंट में इस्तफसार। कहा कि बरतानवी हुकूमत की इस्लामोफोबिया से मुतालिक कोई पॉलिसी नहीं है। मुसलमान तौहीन को कबूल नहीं करेंगे। जब मुसलमानों की बात आती है तो इस वक्त लिबरल और जमहूरी उसूलों का इतलाक़ नहीं किया जाता जैसे दीगर ममालिक में किया जाता है। हम तवक्को कर रहे थे कि हुकूमत इस्लामोफोबिया पर कोई पॉलिसी वाज़े करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हुकूमत ने बरतानवी मुसलमानों के साथ खड़े होने का मौका ज़ाया कर दिया। बहरिया ने हंगूर डे 2023 के मौके पर खुसूसी डॉक्यूमेंट्री हरावल का प्रोमो जारी कर दिया है। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक डॉक्यूमेंट्री में पाक बहरिया की सबमरीन सर्विस के किरदारों और कामयाबियों को भरपूर तरीके से उजागर किया गया है। 1971 में पाकिस्तानी आबदोज हंगूर ने भारतीय जहाज कुकड़ी को समंदर बुर्द कर दिया था। दूसरी जंग अजीम के बाद ये पहला वाक़या था जिसमें किसी आबदोज ने बहरी जहाज को डबोया। आबदोज हंगूर ने अपने दूसरे हमले में दूसरे भारतीय जंगी जहाज करपान को भी मफलूज करके रख दिया था। जंग सितंबर 1965 में पाक बहरिया की आबदोज गाजी की दहशत से दुश्मन खुले समंदर का रुख तक न कर सका। सबसे अव्वल सबसे बेहतर काज़म लिए पाक बहरिया की सबमरीन सर्विस के जांबाज आज भी दुश्मन के आगे सीना सफर हैं। आगे बढ़ेंगे। सिविल जज की अहलिया के हाथों तशद्दुद का शिकार होने वाली घरेलू मुलाजमा रिजवाना ने स्कूल में तालीम का आगाज़ कर दिया।
چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی چیئرپرسن سارہ احمد نے بتایا کہ چائلڈ پروٹیکشن اسکول میں زیر تعلیم بچیوں نے پہلے دن رضوانہ کو خوش آمدید کہا۔ رضوانہ کا آج اسکول میں پہلا دن تھا، اس نے باقاعدہ تعلیم کا آغاز کر دیا ہے۔ بہاولپور چڑیا گھر میں شیر کے پنجرے میں نوجوان کیسے پہنچا، تحقیقات جاری ہیں۔ ڈپٹی کمشنر لاہور کہتے ہیں ورثاء نے تعاون سے انکار کر دیا ہے، جیو فینسنگ سے مدد دی جا رہی ہے۔ سی ٹی وی سے پتہ چلا کہ وہ مرکزی دروازے سے چڑیا گھر میں داخل نہیں ہوا، شخص کی موت معمہ بن گئی۔ ایویڈنس کلیکٹ کی جا رہی ہے۔ ویڈیو دیکھی ہے جو گیٹ پر کیمرے لگے ہوئے ہیں، اس دن وہ گیٹ سے انٹر نہیں ہوا، تو اگر اس نے دیوار پھلانگی ہے، اس کے پیچھے اس کے موٹیوز کیا تھے؟ کیا یہ فیصلہ اس نے خود اکیلے کر لیا یا اس کو کوئی بندہ گائیڈ کر رہا تھا یا اسسٹ کر رہا تھا؟ اس کو ڈٹرمن کرنے کے لیے جو ہماری جیو فینسنگ کی رپورٹ ہے اور جو فورینزک ٹیمز ہیں وہ تھوڑا وقت اس میں درکار ہے، لیکن میں آپ سے یہ کمٹمنٹ کرتا ہوں کہ جو بھی اس کی فائنڈنگز ہوں گی وہ آپ سے ضرور شیئر کریں گے۔ ابھی تک ہم نے اور ہماری ٹیم نے کنکلوژنز کیے نہیں ہیں، کیونکہ وی آر پروسیڈنگ ود سرٹن لاجکس اینڈ ود سرٹن ایویڈنس۔ ایسے پرزمپشن اور مفروضوں کی بیس پہ انکوائریز یا انویسٹیگیشن جو ہیں، اور خاص طور پہ اس طرح کے اندوناک واقع کی، وہ نہ ہوتی ہیں نہ کرنی چاہیے۔ نواکل میں گرین لائن ایکسپریس محمد پور ریلوے پھاٹک پر پک اپ سے ٹکرا گئی۔ حادثے میں پک اپ ڈرائیور موقع پر جاں بحق، 2 افراد شدید درمیان اب ٹریک 4 گھنٹے بند رہا۔ غفلت اور جلد بازی، گرین لائن ایکسپریس محمد پور ریلوے پھاٹک پر پک اپ سے ٹکرا گئی۔ حادثے میں پک اپ ڈرائیور موقع پر دم توڑ گیا، 2 افراد شدید زخمی ہو گئے جنہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ٹرین کے انجن کو شدید نقصان پہنچا، 4 گھنٹے تاخیر کے بعد دوسرا انجن لگا کر منزل کی طرف روانہ کیا گیا۔ حکام کے مطابق حادثہ پک اپ ڈرائیور کی غلطی سے پیش آیا۔ ریلوے پھاٹک بند ہونے کے باوجود ڈرائیور گاڑی لے کر ٹریک پر آ گیا تھا۔ شہر قائد کی تمام سڑکیں پارکنگ مافیا کے لیے سونا اگلنے لگیں۔ کراچی کی کوئی سڑک ایسی نہیں ہے جہاں پارکنگ کا مناسب انتظام ہو۔ میئر کراچی کے پارکنگ سے متعلق دعوے بھی کام نہیں آ سکے۔ تفصیلات ہم جانیں گے وجاہت علی عابدی سے۔ شہر قائد کی تمام سڑکوں پر پارکنگ مافیا کا راج۔ پارکنگ مافیا کے کارندے شہریوں سے موٹر سائیکل کے 30 روپے اور گاڑی کے 100 روپے وصول کرتے ہیں، جبکہ بلدیہ عثمہ کراچی نے بائک کے 10 روپے اور گاڑی کے 30 روپے چارجز رکھے ہیں۔ گزشتہ روز سندھ ہائی کورٹ نے KMC کو شہر بھر کے اسکولوں، فلاحی اسپتال، تفریحی مقامات سے فوری طور پر پارکنگ فیس ختم کرنے کے احکامات جاری کیے تھے، مگر بلدیہ عثمہ کراچی کا پارکنگ ڈپارٹمنٹ ہائی کورٹ کے احکامات پر عمل نہ کرا سکا۔ شہری اس حوالے سے کہتے ہیں کہ شہر بھر میں کہیں بھی جائیں پارکنگ مافیا کا کارندہ موجود ہوتا ہے جو اضافی پیسوں کا تقاضا کرتے ہیں۔ اگر پارکنگ کے 10 روپے فیس رکھیں، ہر بندہ سہولت کے حساب سے رکھے گا، پولیس والوں سے بھی بچے گا۔ اگر پولیس والے غلط پارکنگ کرتے ہیں تو پولیس والے اٹھا کے لے جاتے ہیں، وہ 400-500 روپے لفٹنگ چارجنگ لے لیتے ہیں موٹر سائیکل کے۔ جو 50 روپے جو لے رہے ہیں اس کی جگہ 30 روپے لیے جائیں پارکنگ والے۔ بھائی جان ہم یہی کہیں گے میئر کراچی کو کہ آپ ٹھنڈے روم سے باہر نکلیں اور جو بھی اس میں ملوث افراد ہیں ان کے خلاف کارروائی کریں، ان کے خلاف کیس داخل کروائیں، اور کس کے حکم پر جو بائک کے چارجز ہے، حالانکہ ہے تو 10 روپے پر بائک کے 50 روپے اور گاڑی کے جو 50 روپے فیس ہے وہ 100 روپے وصول کی جا رہی ہے۔ سندھ ہائی کورٹ نے کنٹونمنٹ بورڈ کے علاقوں میں بھی پارکنگ فیس وصولی پر پابندی عائد کی ہوئی ہے، مگر اس کے باوجود کنٹونمنٹ بورڈ کے علاقے اسٹار سٹی مال، صدر، کراچی پریس کلب کے اطراف، ملینیم مال اور ٹائم میڈیکو کے اطراف بھی پارکنگ فیس کی غیر قانونی وصولی جاری ہے۔ اور اب ذکر فضائی آلودگی کا۔ ملک کے میدانی علاقوں سے اسموگ کے سائے چھٹ نہ پائے۔ دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں لاہور کا بدستور پہلا نمبر، کراچی دوسرے نمبر پر آ گیا۔ بالائی علاقوں میں یکبستہ ہواؤں نے ڈیرے ڈال لیے، لہ -10 کے ساتھ سرد ترین مقام رہا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور سرد رہے گا۔ میدانی علاقوں میں اسموگ کا روگ، پہاڑوں پر شدید ٹھنڈ کا زور، پنجاب میں اسموگ کے گہرے سائے۔ لاہور آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں آج بھی ٹاپ پر۔ فضا میں آلودگی 264 پارٹیکولیٹ میٹرز ریکارڈ کی گئی۔ فیصل آباد، اکاڑا، قصور اور گجرانوالہ سمیت دیگر شہروں میں صبح کے وقت منظر دھندلا گئے، حد نگاہ نہ ہونے کے برابر رہی۔ ملک کے بالائی علاقوں میں سردی نے پنجے گاڑ لیے۔ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں پہاڑوں
पर सफेदी छा गई। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में यकबस्ता हवाओं ने शहरियों की कुल्फी जमा दी। लह -10 के साथ सर्द तरीन मुकाम रहा। स्कर्दू -8, गलगित-इस्तोर -5, कोप्स में -4 और कलाम में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची का मौसम भी सर्द हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और सर्द रहेगा। लाहौर हाईकोर्ट ने स्मोक के तदारुक केस में रात गए तक खुले रहने वाले रेस्टोरेंट्स को 50,000 जुर्माना और सील करने का हुक्म दिया है। अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या CBD ने कोई एक ग्रीन प्रोजेक्ट शुरू किया है। बुलंदोबाला इमारतें खड़ी कर रहे हैं मगर ग्रीन प्रोजेक्ट क्यों शुरू नहीं किया। अदालत ने ग्रीन प्रोजेक्ट से मुतालिक रिपोर्ट तलब करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। शॉर्ट फिल्म मुहाफिज की आर्ट्स काउंसिल फैसलाबाद में स्क्रीनिंग। पुलिस, जिला इंतजामिया के अफसरान समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। पंजाब पुलिस के माशरे के लिए मुस्बत किरदार को सराहा। रिपोर्ट कर रहे हैं उवैस सत्तार। पुलिस के मुस्बत किरदार की अक्कासी। शॉर्ट फिल्म मुहाफिज की आर्ट्स काउंसिल फैसलाबाद में स्क्रीनिंग की गई। फिल्म मुहाफिज में शहरियों को पुलिस के मुस्बत किरदार से रोशनास करवाया गया। ये एक स्टेप है पुलिस की काविशों को पब्लिक तक एक सॉफ्ट तरीके से पहुंचाने के लिए। इन सारे स्टेप से और इस तरह के बहुत सारे कम्युनिटी पुलिसिंग के स्टेप से हम पब्लिक और पुलिस दरमियान वो गैप ब्रिज करना चाहते हैं जिससे हम मिलकर काम करें और एक जो लार्जर मोटिव है एक इलाके में अमन कायम रखने के लिए उसकी तरफ हमारी एक राह गामज़न है उस तरफ। पुलिस, जिला इंतजामिया के अफसरान समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। पंजाब पुलिस के माशरे के लिए मुस्बत किरदार को सराहा। जो सबसे बड़े जो रियलाइजेशन वो हुई कि जो हमारे लोअर रैंक के ऑफिसर्स हैं उनकी बहुत सारी सेक्रीफाइसेस हैं, उनकी ड्यूटी आवर्स से लेकर बाकी सारी चीज़ें हैं, तो उनको उस तरह से नहीं दिखाया जाता, नहीं प्रमोट किया जाता जो को दिखाना चाहिए। तो हमने बेसिकली उन अच्छे काम को दिखाने की कोशिश की है और मेरा ये बिलीव है कि जब आप किसी को अच्छा दिखाते हैं तो वो और ज़्यादा अच्छा करता है। CCPO अली ज़िया का कहना था कि पुलिस की कोताहियों पर तनकीद करना हर शहरी का हक है, जबकि पुलिस के अच्छे कामों की तारीफ से फोर्स का मोराल बुलंद होता है। कैमरामैन मोहम्मद शाहिद के साथ अवैस सत्तार, बोल न्यूज़, फैसलाबाद। ट्रैफिक हादसे में शहीद सूबेदार मोहम्मद आसिफ को उनके आबाई गाँव में फौजी एजाज के साथ सपुर्द खाक कर दिया गया। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। नमाज जनाजा में पाक फौज के अफसरान, सियासी और समाजी शख्सियात समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। 39 साल सूबेदार मोहम्मद आसिफ के सोगवारान में पाकिस्तान में मुंह के कैंसर की शरह हौलनाक हद तक बढ़ती जा रही है। सबसे ज्यादा शहर कायद मुतासिर है। मज़ीद जान लेते हैं मरियम हसन की रिपोर्ट। पान, गुटखा, मावा, छालिया और नस्वार मुंह के कैंसर की बड़ी वजूहात करार। पाकिस्तान में मर्दों में मुंह के सरतान की शरह सबसे ज्यादा। कराची में मर्ज हौलनाक हद तक बढ़ता जा रहा है। डॉक्टर इरफान कहते हैं गुटखा मावा के इस्तेमाल से शहरी तेजी से इस मर्ज से मुतासर हो रहे हैं। कैंसर जो है मर्दों में बहुत ज़्यादा कॉमन है। उसके बेसिक कुछ रीजंस हैं, जैसा कि एक्सपोजर टू दी समझें कि आप जो कार्सिनोजेंस हैं जैसे पान, गुटखा, छालिया, बहुत सारे नाम हैं, जैम, उस तरह की चीज़ें हो रही हैं, यूज़ हो रही हैं। ख़वातीन में 2 कम है, मगर अब हमारे पास ख़वातीन भी रिपोर्ट हो रही हैं ओरल कैंसर के हिसाब से। 18 से 20 साल के नौजवान भी इस मर्ज का शिकार बन रहे हैं। पान गुटखे पर पाबंदी पर अमल दरामद करके इन्हें बचाया जा सकता है। पानी शायद थोड़ा दूर मिलेगा मगर आपको ये चीज़ गली के नुक्कड़ पे भी मिल जाएगी, ठीक है। तो एक्सेस इज इम्पॉर्टेंट कि उसको रोकना चाहिए कि आप इजीली अवेलेबल ना हो, ठीक है। उसकी जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो स्टोरेज है, जो मैन्युफैक्चरिंग जहाँ पे होती है वहाँ पे पाबंदियाँ लगाए तो इसको इतना मुश्किल नहीं है। एक बहुत बड़ी माफिया है, हम यहाँ फेस कर चुके हैं कि कैसे वो किया जाता है। मुंह के सरतान की शरह पर काबू पाने के लिए हुकूमत गुटखा मावा माफिया के खिलाफ कार्रवाई करे तो नौजवान इस खतरनाक मर्ज में मुब्तला होने से बच सकते हैं। कैमरामैन अजमल के साथ मरियम हसन, बोल न्यूज़, कराची। और मुजफ्फरगढ़ में कीनू के बागात, सर्दियों का बेहतरीन फल कीनू माल्टा जो खूब मीठा होने के साथ साथ इंसानी सेहत के लिए भी बेहद मुफीद होता है। मजीद जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदा राव कामरान से। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त किन्नू माल्टे के बाग में मौजूद हैं। अगर माल्टों की किस्मों की बात की जाए तो जैसे फ्लूटर है, मौसमी है, दीगर माल्टे भी होते हैं, लेकिन माल्टों में सबसे आला और उम्दा क्वालिटी जो है वो किन्नू माल्टे की होती है, क्योंकि ये रसीला भी होता है और मिठास में भी सबसे ज़्यादा होता है। इस वक्त मैं आपको बताऊं कि मैं एक बागबान के साथ मौजूद हूँ। बागबान से मज़ीद जानेंगे कि किन किन चीज़ों के लिए जो है किन्नू माल्टा जो है फ़ायदा मंद भी होता है। जी भाईजान, ये किन्नू का बाग है, बहुत अच्छा है माशाल्लाह। इनका जायका भी बहुत अच्छा होता है और ये सर्दियों का मेवा है
सर जी इसके, और ये मैंने दोस्तों अहबाबों के लिए लगाया हुआ है, मेरे दोस्त रिश्तेदार वगैरह आते हैं खाने के लिए मैंने लगाया हुआ है। वैसे मेरी खेती बाड़ी और भी है, आमों के बाग भी है, मगर ये मैंने इनका यहाँ बहुत अच्छा जायका होता है और मैंने अपने लिए लगाया हुआ है, दोस्तों अहबाबों के लिए। कुव्वत मुदाफ़त के लिए बहुत अच्छा, मैदे के लिए जो है बहुत ही जो है ये बेहतरीन एक टॉनिक है, जिसे डॉक्टर हजरात जो है ख़ास तौर पर बताते हैं कि सर्दियों में जो है ख़ास तौर पे किन्नू माल्टा खाया जाए और उसी का जो है वो जूस निकाल कर भी पिया जाए। और अब खबर खेल के मैदान से। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले धचका। मिस्ट्री स्पिनर अबरार अहमद इंजरी का शिकार हो गए। पीसीबी एलामिया के मुताबिक अबरार अहमद को टांग में तकलीफ के बाद MRI स्कैन के लिए भेज दिया गया है। मेडिकल पैनल क्रिकेटर की रिपोर्ट सामने आने के बाद तफसीलात से आगाह करेगा। दोनों टीमों के दरमियान सीरीज का पहला मैच 14 दिसंबर से पर्थ क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। जहां मैदान आबाद होते हैं वहां अस्पताल वीरान होते हैं। चिन्योर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी के ज़रिए तमाम 4 रोज़ा स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद किया गया, जिसमें ज़िले के तमाम स्कूलों के बच्चों ने हिस्सा लिया। रिपोर्ट करेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदा मुदस्सिर काज़मी। हाँ जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर चिन्योर मोहम्मद आसिफ रज़ा ने जिला भर में तमाम स्कूल के जो स्पोर्ट्स गाला करवाए थे, जिसका आज डिस्ट्रीब्यूशन जो प्राइज की जो तकरीबात है, जिसके चीफ गेस्ट भी डिप्टी कमिश्नर आसिफ रज़ा है, उनसे जानते हैं। जी सर बताइएगा आज की तकरीब के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी हमारा जो इंटर स्कूल्स जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्पोर्ट्स का फेस्टिवल है, आज उसका फिनाले था और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हमने की है। मद्देनज़र सिर्फ ये है कि तलबा के साथ जो हमारी तालिबात हैं और लाइक 27 इस दफ़ा का जो मेन एस्पेक्ट ये है कि तालिबात ने तमाम जो स्पोर्ट्स हैं उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। ये काबिल इस्ताइश है कि चिन्योर की जो तालिबात है वो स्पोर्ट में सबसे अव्वल और आगे रही हैं। उनके साथ साथ ये भी कहना था कि आने वाले जो जश्न बाहर हैं वो इससे ज़्यादा शानदार करवाया जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।